Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Muhammad Iqbal, your course instructor in Education Policy and Planning, MA Education, Leadership and Management. This is my 12th lecture on National Education Policy 1992. Dear students, I am starting my lecture from this educational statement of education is not only a ladder of opportunity, but it is also an investment in our future. Ed Markey. Ravi Gupta said, education is the discipline for the adventure of life. It means education is the main lever for the development and training of life. Dear students, now I will discuss about the salient features of National Education Policy, how it is started, and so National Education Policy 1992 structured on the basis of guideline provided by the PM's directive on 10th February 1991. Federal Minister of Education announced the policy on 20th December 1992. This policy, formulated with the consultation of teachers, parents, scholars, lawyers, journalists, students, representative of public and communities, etc. Planning, finance and education ministers and provincial departments were also involved to set benchmarks, targets and implementation strategies about this policy. Dear students, now I will discuss about the main objectives of this policy. This policy suggested and highlighted that promotion of Islamic values through education. So this policy suggested that the education system should promote the Islamic values in education system. The second objective is improvement in women education. It is also the objective to improve the women education in the country. And the third objective, range of general and technical education at secondary level. It was also suggested by this policy that general and technical education should increase up to secondary level. The fourth objective was that our curriculum should be changed and it should be made demand oriented instead of supply oriented curriculum. Objective number 5, expanded span of graduation on post graduation. It was also suggested in this policy that span of graduation should be increased. Number 6, use of AVAs, promoting private sector to participate in enhancement of literacy. It suggested that private sector also be involved to enhance the literacy in the country. Dear students, this policy aimed at bringing following changes. It means following targets were suggested by this policy. Structuring the society as directed by the teaching of Islam. It means the education system should be modified according to the teaching of Islam. Universalization of primary education, eliminating the dropout and fulfilling the basic learning needs by the year 2002. So 2002, the superannuation period of the policy. So raising the literacy ratios to 70% by the year 2002 through extensive adult education programs of functional literacy. This policy also suggested literacy rates
dear students, this policy suggested to increase the rate of 70% literacy up to 2002 through extensive adult education programs of functional literacy. फंक्शनल लिटरेसी के ज़रिए इस पॉलिसी में सजेस्ट किया गया कि 2002 तक 70% तक लिटरेसी रेट बढ़ाया जाएगा. सो रैशनलाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम को रैशनलाइज किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू नीड्स इसमें एडजस्टमेंट की जाएगी. Inviting the private sector for participation in educational programs and allowing progressive disinvestments of educational institutions. It means कि प्राइवेट इदारों को भी शामिल किया जाएगा एजुकेशन के की डेवलपमेंट में, और ग्रेजुअली गवर्नमेंट के तालीमी इदारों पर इन्हिसार कम किया जाएगा, यानी उनको खुद मुख्तारी दी जाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो अपने अखराजात खुद कुछ उठा सके, खास तौर पर हायर एजुकेशन के इदारे. डियर स्टूडेंट्स, द की एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिसी वर ओपनिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू नॉन गवर्नमेंट, achieving 100% literacy selected districts, set up model schools male and females in rural areas. इस पॉलिसी में यह भी तय किया गया कि 100% कुछ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट्स में 100% लिटरेसी रेट्स बढ़ाए जाएं, वहाँ मॉडल मेल एंड फीमेल स्कूल्स खास तौर पर रूरल एरियाज में खोल कर. इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी सोशल सर्विस फॉर स्टूडेंट्स, तलबा के लिए लाजमी तौर पर सोशल सर्विस की उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको उसमें शामिल किया जाए. यूजिंग जनरल स्कूल्स एज टेक्निकल स्कूल्स, जनरल स्कूलों को टेक्निकल स्कूलों के तौर पर शुरू किया जाए इन द इवनिंग शिफ्ट, शाम की शिफ्ट में, टू कैप्चर द ड्रॉप आउट्स ऑफ जनरल एजुकेशन के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए. Dear student, National Education Policy 1992 also suggested some more targets. The participation rate at various levels of education had been very low in Pakistan. The National Education Policy 1992 was another attempt to streamline the process of education, which was a victim of various external and internal problems. तो पाकिस्तान के जो अंदरूनी और बैरूनी हालात की वजह से, कुछ सियासी अनारकी और अदम इस्तेहकाम की वजह से तालीमी टारगेट्स और पसमानदा रहे और हुकूमत की ये पॉलिटिकल विल न रही. सो द पॉलिसी वाज डिजाइन्ड बाय असेसिंग फ्यूचर नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली इन प्राइमरी एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी. सो खास तौर पर इस पॉलिसी को बनाया गया फ्यूचर की प्राइमरी एजुकेशन और एडल्ट लिटरेसी के प्रोग्रामों की मुल्क में उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको शुरू करने के लिए. और फर्दर मोर इट सर्व्ड एज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द फ्यूचर ईफा एजुकेशन फॉर ऑल स्ट्रेटजीज. इस पॉलिसी में एजुकेशन फॉर ऑल पर बहुत जोर दिया गया, ईफा एजुकेशन स्ट्रेटजीज पर एंड प्रोग्राम्स पर, एंड सेट द फॉलोइंग पॉलिसी टारगेट्स, और दर्जे झैल पॉलिसी टारगेट्स सेट किए गए. इन प्राइमरी एजुकेशन द पॉलिसी सजेस्टेड primary education was recognized as a fundamental right of every Pakistani child. यानी इसको पाकिस्तान के हर बच्चे का बुनियादी हक के तौर पर इसको तस्लीम किया गया, and would be made compulsory and free in order to achieve universal primary education. So universal primary education हासिल करने के लिए इसको free और compulsory बनाया गया. Reducing in dropout rates कम करते हुए and fulfilling of the basic learning needs by the end of the decades. तो इस दहाई के आखिर तक बुनियादी लर्निंग नीड्स को पूरा करते हुए. सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्राइमरी एजुकेशन वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसिक एजुकेशन, और वक्त गुजरने के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन को बुनियादी एजुकेशन में तब्दील कर दिया जाएगा. एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सटेंडिंग टू क्लास 8th
और एलिमेंट्री एजुकेशन को क्लास 8 तक इसको बढ़ाया गया या उसको एक्सटेंड किया गया. द पार्टिसिपेशन रेट एट प्राइमरी लेवल वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 66.3% टू 99.1% अप टू 2002. सो 2002 तक जो पार्टिसिपेशन रेट था प्राइमरी लेवल पे बच्चों के दाखिले को 66.3% से बढ़ाकर 99.1% करने की तजवीज़ दी गई. Adult education for better living. Dear students, this education policy suggested the education as a education for better living. The existing provision of Islamic education formed the basis for development of new curricula. तो the Islamic education को करिकुलम निसाब या निसाब की डेवलपमेंट के लिए, न्यू निसाब की डेवलपमेंट के लिए बुनियाद के तौर पर उसको तस्लीम किया गया. द रिलीजियस एजुकेशन वाज सो डायरेक्टेड एज टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू लर्न हाई टेक्निकल एंड मॉरल वैल्यूज एनकोडेड इन द स्पिरिट ऑफ इस्लाम. तो मजहबी तालीम को इस तरह मतलब रीडायरेक्ट करते हुए कि जो तलबा को फैसिलिटेशन के साथ उनको आला एथिकल और मॉरल वैल्यूज इस्लामिक स्पिरिट के मुताबिक उनमें पैदा करने के लिए निसाब तालीम को ये फ्रीजा सौंपा गया. इट आल्सो प्रिपेयर्ड देम एट द सेम टाइम एज अ मेंबर ऑफ हेल्दी एंड लाइटेंड एंड फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी. और इसके साथ साथ उनको इस तरह तैयार करना कि वो अपने आप को एक रोशन, सेहतमंद और मुस्तकबिल को देखने वाली सोसाइटी के मेंबर के तौर पर उनको तैयार किया जाए. यानी निज़ाम तालीम का ये मकसद ठहरा. डियर स्टूडेंट्स, इस पॉलिसी में वुमेन एजुकेशन पर भी फोकस किया गया. द पॉलिसी स्ट्रेस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग वुमेन्स एजुकेशन एज वेल. To improve the female education, innovative approaches both in the formal and non-formal sectors were emphasized. Female education को improve करने के लिए innovative approaches formal और non-formal education sectors में उन पर जोर दिया गया. Recognizing the difficulties regarding this vital issue, इस अहम इशू के रास्ते में हायल होने वाली मुश्किलात को पहचानते हुए इट स्ट्रेस्ड, इस बात पर जोर दिया गया ऑन इंक्रीज्ड एक्सेस ऑफ फीमेल्स टू जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन थ्रू अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज. सो खवातीन के लिए इस बात पर जोर दिया गया कि वो जनरल एजुकेशन तक उनकी एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए और वोकेशनल एजुकेशन के लिए और एजुकेशन फैसिलिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव लाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उनमें वुसअत पैदा करते हुए. डियर स्टूडेंट, दिस इज द अ क्रिटिक ऑन अवर एजुकेशन सिस्टम बाय एल्बर्ट आइंस्टीन. फॉर अ फेयर सिलेक्शन everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Our education system stress that everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. So you seeing that an elephant, a monkey, a dog and a fish, they are all suggested to climb that tree for the appointment in a service. That is I think not fair. It means that we should have the different assessment system for different people, for different type of tests, for different types of jobs. So dear students, now I will focus on the policy statements. In this policy suggested that liberal funds should be provided for holding national and international seminars
conferences and workshops for social sciences, natural sciences and technology. इस पॉलिसी में फंड्स सजेस्ट किए गए कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स मुल्की और बैन अवी सतह पर मुनाकिद करने के लिए फॉर सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस और टेक्नोलॉजी के मैदान में. दोज रिसर्चर्स हु जनरेट information and process for the development of new technology shall be appropriately forwarded. उन रिसर्चर्स को जो इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की, shall be appropriately rewarded, उनको लाजमी तौर पर उनको रिवार्ड दिए जाएंगे. The Library of Quaid-e-Azam University will be raised to the status of our National Library of Science and Technology. तो इस पॉलिसी में सजेस्ट किया गया कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर उसको तैयार किया जाए और एक्सेप्ट किया जाए. Provinces will encourage to set up institutes of higher sciences and technology. सूबों को की हौसला अफजाई की जाए कि वो हायर एजुकेशन में साइंस और टेक्नोलॉजी के इदारे कायम करें. So all university administrators will be required to undertake training and management of higher education. यूनिवर्सिटी के तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी यूनिवर्सिटी के मामलात को, हायर एजुकेशन के मामलात को चलाने के लिए. All curriculum will be modernized in order to accommodate new knowledge and new disciplines. नए डिसिप्लिन्स और नए नॉलेज को एकोमोडेट करने के लिए तमाम निसाब को मॉडर्नाइज बनाया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा. यूनिवर्सिटी टीचर्स डूइंग रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एमफिल एंड पीएचडी स्टूडेंट विल बी ग्रांटेड अ रिसर्च अलाउंस. वो असातिज़ा जो पीएचडी और एमफिल लेवल पे तलबा को रिसर्च करवा रहे हैं उनको रिसर्च अलाउंस दिया जाए. यूनिवर्सिटीज में ऑफर a package of incentives in the form of better salaries and research grants to high qualified teachers. High qualified असातिज़ा को यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास इंसेंटिव पैकेज सैलरी के और बेहतर सैलरीज और रिसर्च ग्रांट्स अता करने के लिए यानी देने के लिए उनमें उनको उनके लिए हौसला अफजाई की गई या उसके लिए पॉलिसी में सजेस्ट किया गया. So a 10-year program for higher education developed will be prepared by UGC. University Grants Commission एक 10-year program हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए बनाएगा. 20 new universities, 4 in public sector and 16 in the private sector will be opened to meet the rising demand for higher education. So हायर एजुकेशन की डिमांड को, बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए मुल्क में 20 यूनिवर्सिटियां जिनमें से 4 पब्लिक सेक्टर में और 16 प्राइवेट सेक्टर में खोलने की सिफारिश की गई. एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी टीचिंग ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स एंड फिलॉसफी विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर दोज फॉर इन द सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स. सो एट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर एजुकेशन को कंपल्सरी और टीचिंग ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर्स और फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स में. अ डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर विल बी अपॉइंटेड इन ईच एजुकेशनल कैंपस फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स. सो हायर एजुकेशन के इदारों में कि हर कैंपस में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स का ओहदा या एक वो बनाया जाएगा. ये इस पॉलिसी में ये भी सजेस्ट किया गया. A campus security force will be established at each campus. हर कैंपस के लिए एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में. सब स्टूडेंट्स क्लब सच विच कुड एनहांस एकेडमिक एक्सीलेंस, शार्पन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड प्रमोट क्रिएटिविटी विल बी एनकरेज्ड. तो स्टूडेंट्स क्लब बनाए जाएंगे जो
एकेडमिक एक्सीलेंस को इन्हांस करेंगे और तलबा की ज़हनी सलाहियतों को फ़रोग देंगे और उनमें तहकीक और जुस्तजू को फ़रोग देने की और उनकी हौसला देंगे और हौसला अफजाई करेंगे। पेरेंट्स एंड एलुमनाई एसोसिएशंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन ईच कैंपस। हर कैंपस में पेरेंट्स और एलुमनाई एसोसिएशंस बनाई जाएंगी फॉर सीकिंग periodical advice about maintaining discipline on campus। सो कैंपस में डिसिप्लिन मेंटेन के लिए उनसे वक्फों से एडवाइस हासिल करने के लिए वालिदैन और एलुमनाई एसोसिएशंस बनाई जाएंगी। द वाइस चांसलर विल बी vested with full authority to expel a student if he or she is not satisfied with their conduct and behavior। हर वाइस चांसलर को ये इख्तियार दिया जाएगा, अथॉरिटी दी जाएगी कि वो उस स्टूडेंट को एक्सपेल कर सकें जिसका करेक्टर यानी जिस लड़के या लड़की यानी का बॉय या गर्ल का करेक्टर या बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। द रूल ऑफ 80% अटेंडेंस ऑफ क्लासेस विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो 80% हाजिरी क्लासेस में 80% हाजिरी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, ये भी इस पॉलिसी में सजेस्ट किया गया। कंक्लूजन, डियर स्टूडेंट्स, in this slide I will conclude the policy. The different educational policies clearly bring out that there has been concern regarding the need to reform education. However, the implementation has never matched the fine words of policies। यानी ये जो इम्प्लीमेंटेशन की सतह पर आकर हमारी पॉलिसियों में मसाइल पैदा हुए और फाइनेंशियल एलोकेशंस हैव बिन इनएडिक्वेटेड, क्योंकि सियासी हुकूमतें फाइनेंशियल जो एलोकेशंस हैं वो मुनासिब अंदाज में नहीं करती थी, अगर कर भी देती थी तो दौरान साल उन पर कट लगा दिया जाता किसी और मद में खर्च करने के लिए। द रिजल्ट इज दैट इन पाकिस्तान में ये इसका यानी तालीमी तरक्की ना होने की वजह यही सबब था, यही एक वजह मेन वजह थी। एजुकेशन जनरली एंड हायर एजुकेशन इन पर्टिकुलर गिव्स द लुक्स ऑफ abandoned child। सो हायर एजुकेशन और ख़ास तौर पर इन पर्टिकुलर गिव्स द लुक्स ऑफ, यानी ये है कि हायर एजुकेशन जो है वो हर बच्चे की ज़रूरत करार दी गई और उसको मतलब है कसीर तलबा की ज़रूरत बनाया गया या उसके लिए सजेशन की दी गई और हायर लेवल पर उनका दाखिला बढ़ाने की सिफारिश की गई। Dear students, now I come towards the implementation of this policy. So it is very astonishing thing that this policy could not be implemented because there was a political anarchy and political instability, and there was a riot between provincial government and federal government. So due to this reason this policy could not be implemented due to the change in political scenario of the country. So this policy was totally could not be implemented. Dear students, मैंने आपको 1992 की पॉलिसी के से ऑब्जेक्टिव्स, उसके सेलिएंट फीचर्स और उसके टारगेट्स और उसका इसके बारे में आपको बताया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बताया कि ये इम्प्लीमेंटेशन उसकी इस पॉलिसी की ना हो सकी। अब मैं आपसे ये जो पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है हमेशा इसमें सियासी वजूहात की, अनट्रेंड अफराद की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल की वजह से हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी रही। यानी जो गुज़श्ता पॉलिसियाँ भी थी उनके नफाज में भी कुछ ना कुछ मसाइल रहे जो इम्प्लीमेंटेशन
लेकिन वो जुज़वी तौर पर इम्प्लीमेंट की गई, लेकिन ये पॉलिसी जो है 1970 की पॉलिसी की तरह ये पॉलिसी भी पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट ना की जा सकी सियासी वजूहात की बना पर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा सेशन एजुकेशन पॉलिसी 1992 पर। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट किसी अगली पॉलिसी के सेशन में मुलाकात होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।